اعتماد. ماشاءاللہ. لائیو ٹرانسمیشن ہے سائمہ, آپ اور اما یہ آپ کا چائے کا کپ میرے پاس پہنچ چکا ہے معذرت کے ساتھ. یہ اگر آپ قبول کر لیں. جی لیکن ایک چیز میں بھی اپنا کمپلیٹ کر تھینک یو ویری مچ. جو عمار نے سائمہ کے لیے الفاظ استعمال کیے, اس میں جو انہوں نے ان کے انٹیلیجنس کا کہا, اس کے حوالے سے میں بات کروں گی. راشد محمود نے جو ان کے کچھ ذکر کیا تھا ہینڈ کا, تو اس کے سلسلے میں کس قدر ان کی یاداشت اور انٹیلیجنس کو داد دینے والی بات ہے کہ ان کے بچوں تک کا اور سب کچھ ان کے ویئر اباؤٹ سے تھے. جی, اور جنرل اور میرڈ لائف. life in general and married life also. اوکے, آئی تھنک جنرلی یہ ہے کہ آپ بس جو بھی چیلنجز آپ کو خدا کی طرف سے آئیں انہیں قبول کریں اور ڈٹرمنیشن سے آپ انہیں فیس کریں. اور میرڈ لائف کا تو میں نے جواب ابھی تھوڑی پہلے دیا تھا. انہی کا اسی سوال میں تھا کہ اپنی زندگی کے آپ اپنے معمولات جو ہیں عام زندگی کے روزمرہ کے, وہ کس طرح سے نبھاتی ہیں؟ جی, اس میں نے جیسے شروع میں میرے خیال بات ہوئی تھی کہ چونکہ مجھے کچھ عرصہ باہر رہنے کا موقع ملا بہت ہی اچھے انسٹیٹیوشن میں. انفیکٹ جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں سے ایک اسٹوڈنٹ لڑکیوں میں اور ایک اسٹوڈنٹ لڑکوں میں سلیکٹ ہو کے تو اس کو بھیجا جاتا تھا بیسٹ کالج جو ہے بلائنڈ لوگوں کے لیے, وسٹر کالج میں انگلینڈ میں. تو وہاں پہ میری سلیکشن بھی ہوئی اور میں نے وہاں بھی پڑھا. تو اس میں مجھے بہت زیادہ ایک تو ٹریننگ ملی ہوم مینجمنٹ کی اور ڈیلی لیونگ سکلز کی, اور بالکل نارمل طریقے سے. فار انسٹنس جیسے ابھی اگر میں نے کوکری کرنی ہو تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کتنے ڈسٹینس پہ کھڑا ہونا ہے آگ سے, یا جو بھی مسالے ہیں یا جو بھی چیزیں میں نے ڈالنی ہوتی ہیں ان کو میں نے لیبل کیا ہوا ہوتا ہے جاز کو. یا اگر میں نے چائے بنانی ہو تو میں بہت آرام سے مطلب رکھ سکتی ہوں اپنی فنگر کپ میں, اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کب وہ بھر گیا ہے. تو اس سے محسوس کر کے یا میں بہت آرام سے اپنے کام سب کر سکتی ہوں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑوں کے کلر کیا ہے, اور وہ میں ان کے ڈیزائن سے یاد رکھ لیتی ہوں کہ اس کا گلا اس طرح ہے یا اس کے سلیوز اس طریقے سے سلے ہوئے ہیں. اسی طرح میک اپ میں بھی میں نے اپنی ساری چیزوں کو لیبل کیا ہوا ہے, اور میں آرام سے خود بھی اپنا میک اپ کر لیتی ہوں یا اپنے بال بنا لیتی ہوں, یا جو بھی روزمرہ کے چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں میرے خیال سے بہت اچھے طریقے سے کر لیتی ہوں. اچھا سائمہ, ابھی کوکنگ کی بات ہوئی تو کچھ دیر پہلے جب ہم پہلے ملے اور بیٹھے بات کر رہے تھے, بیکنگ کا مجھے بہت شوق ہے. اسی طرف میں آنا چاہتی تھی. جی, میں اس کا جواب میرے خیال میں مجھے دینا چلے عمار صاحب اس کا مختصر. فطرتاً مشکل پسند ہے, مشکل کام کرنا پسند کرتی ہیں. تو انہیں ایک دفعہ شوق ہوا کہ برفی بنائی جائے. پہلا دفعہ کوکنگ کرنے کا ارادہ اور برفی بنانے. وہ برفی بعد میں ایسی بنی کہ ہم نے اسے گلاسوں میں ڈال کے پیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اور بھی کھانا کھانے آپ نے. سائمہ آپ یہ سن رہی ہیں نا, اور میرے ہاتھ کا ہی کھانا ہے. یہ بھولتے جا رہے ہیں, ان کا خیال ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ذکر کیا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ نارملی لوگوں کی جب when they choose partners کی جب بات ہوتی ہے, بیویوں کی بات ہوتی ہے, تو اس کو کھانا پکانا آنا چاہیے, پہننا, سلیقہ وغیرہ. تو سائمہ تو کھانا بھی بنا لیتی ہیں. سائمہ, there are no words left to say here. Thank you so much. You are absolutely right. There are no words. Exactly. اللہ آپ کو Very خوش kind رکھے. of you both. Thank you. محمد جلانی صاحب کی کال آئی تھی, اور وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ سکر میں ہوتے ہیں, اور انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ تک کس طرح پہنچ سکیں, اور بینگ اسٹوڈنٹ وہ کس کیپیسٹی میں آپ کی مدد کر سکیں. اگر وہ وہاں نہیں آ سکتے یا ڈونیشن نہ ہو سکے تو ان واٹ کیپیسٹی لوگوں تک یہ پہنچا سکیں کہ یہ فاؤنڈیشن کیا ہے اور اس کے بارے میں اویئرنیس دلائیں. جی, ہم جب فاؤنڈیشن کے کوشچن ڈیل کریں گے اس میں میں بتا دوں یا ابھی؟ جی, آپ اگر ابھی بتا دیں. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ایک تو وہی طریقے تھے جس پہ آپ یا تو ہمیں آڈیو کیسٹس ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ڈونیشن. اور ڈونیشن نہیں ضروری نہیں ہے کہ بہت پورے 1000 روپے کی ہو جو ایک بلائنڈ اسٹوڈنٹ کی سالانہ تعلیم کا خرچہ ہے. آپ 1 روپیہ بھی دیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے ہمارے پروگرام کو. دیٹ ول آلسو گو اے لانگ وے ان امپروونگ دا کوالٹی آف لائف. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی نابینا شخص کو جانتے ہیں تو جیسے میں آپ کو یہ طریقے بتا رہی تھی کہ آپ
बिल्कुल उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखें और उसके उन तरीकों से मदद कीजिए, उसकी मोबिलिटी में, उसके या उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो आप रोल प्ले कर सकते हैं उसको नॉर्मल फील करवाने में और उसे अपनी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट करवाने में, और उसे हमारे प्रोग्राम के बारे में बताइए ताकि हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में कुछ किरदार प्ले कर सकें। सामा, जिस आप फाउंडेशन की बात कर रही हैं, अभी हम आपको उसका एड्रेस भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह मजीद ट्रांसमिशन में कई बार ये एड्रेस हम आपको दिखाएंगे ताकि आप लोग जिन लोगों ने मिस कर दिया हो या जिन लोगों ने शायद उस इतनी जल्दी लिख ना ला हो, सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि पेन पेंसिल्स रख लें, जो भी कोई देख रहा है रख लें, क्योंकि ज़िंदगी, आम ज़िंदगी में आपकी मुलाकात कई लोगों से ऐसी होती है जिनके पास शायद ये कुव्वत ना हो, अल्लाह की रहमत ना हो, तो आप उनको भी बता सकते हैं। सो ये वो अमर है कि अगर आपके कलम से या किसी कागज़ पे लिखा जाएगा तो आपके जहन में, यादाश्त में वो रहेगा और फिर आज से 3 साल बाद भी अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिले तो आप बता सकें कि हाँ, ऐसी फाउंडेशन है जो पाकिस्तान में काम कर रही है और जो इन लोगों को मदद कर रही है। सो कागज़ पेन से अगर आपके पास हों तो हम इंशाल्लाह दोबारा भी दिखाएंगे। अभी भी देखते हैं जो कि हमारा एड्रेस इनके फाउंडेशन का क्या है। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस और ऑल्सो ऑडियो वर्ल्ड प्रोग्राम, और इनका जो एड्रेस है वो है फ्लैट नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, 40A रमज़ान प्लाजा, मंगला रोड, G9 मरकज़, इस्लामाबाद, और टेलीफोन नंबर्स हैं जी 009251 2253 फैक्स नंबर है 009251 2253 009251 ये पाकिस्तान और फिर इस्लामाबाद का कोड है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। और ईमेल एड्रेस है pffb@comsats.net.pk और वेबसाइट है जी www.pffb.org.pk। मैं रिपीट कर देता हूँ ये पूरा एड्रेस, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ऑडियो वर्ल्ड प्रोग्राम, फ्लैट नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, 40A रमज़ान प्लाजा, मंगला रोड, G9 मरकज़, इस्लामाबाद 44000, टेलीफोन नंबर 009251 2253 और फैक्स नंबर है 009251 2253 ईमेल एड्रेस है pffb@comsats.net.pk और वेबसाइट है हमारी www.pffb.org.pk। सो ये एड्रेस और पीओ बॉक्स भी है जी मौजूद, जो कि 1652 इस्लामाबाद। 1652 इस्लामाबाद। सो ये एड्रेसेस हैं। इंशाल्लाह हम ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आपको और भी दोबारा भी दिखाएंगे ताकि जिन लोगों ने नहीं सुना, और इंशाल्लाह बार बार दिखाते रहेंगे। साइमा, अगर हम इस फाउंडेशन की तरफ आएँ और इस फाउंडेशन की बात करें, क्या थॉट थी इसके पीछे टू फॉर्म दिस फाउंडेशन? क्या सोच के बनाया? किसी चीज़ की कमी थी आपकी ज़िंदगी में या इंस्पिरेशन क्या थी? अली, ये जो फाउंडेशन है ये 1988 में बनी और इसका नाम उस वक्त पाकिस्तान रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा सोसाइटी था और प्रेप्स के नाम से ये याद की जाती थी। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में आप सब व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आंखों की एक ऐसी मौरूसी बीमारी है जिसमें आपकी बिनाई इनहेरिटेड रीजंस की वजह से, यानी कज़न मैरिजेस की वजह से ख़त्म होती है और यूजुअली लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में जाती है, और इसका पहला सिम्टम जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। हमने इस फाउंडेशन का नाम उस वक्त इसलिए रखा था कि जिन 2 लोगों ने इसको बनाने में सबसे अहम किरदार अदा किया था, वो उनका नाम डॉक्टर सलमा मकबूल और ज़हीर खालिद है। और वो ज़हीर खालिद बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उस वक्त वो इस फाउंडेशन के चेयरमैन थे, और सलमा शी इज़ अ बाय प्रोफेशन डॉक्टर एंड शी इज़ बीन अ social worker and played a very pivotal role in improving the lives of visually impaired people for the past 40 years. तो वो इस वक्त इसकी चेयरपर्सन है। वो और बहुत सारे ऑप्थोमोलॉजिस्ट्स ने इकट्ठे होके और उनके हस्बैंड कैप्टन मकबूल भी डॉक्टर सलमा के, उन सब लोगों ने, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, उन सब लोगों ने इसकी जो आरपी है इसकी तशखीस के लिए ये फाउंडेशन बनाई थी। तो क्योंकि ज़हीर साहब और सलमा आपा की साइट इसी बीमारी की वजह से ख़त्म हुई और अभी तक हम काफ़ी सारी जीन्स, तकरीबन 40 जीन्स डिस्कवर कर चुके हैं जिनसे आरपी
कॉज होती है, और वो जीन्स पाकिस्तान में इसी वजह से मिली हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कज़न मैरिजेस होती हैं, और हमें ऐसी ऐसी फैमिलीज़ भी मिली हैं जिनमें अबाउट 180 लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं. So a lot of research is also going into this project. That was the first program and first objective of this NGO. दूसरा जो लेकिन जब तक सारी जीन्स ज़ाहिर है कि नहीं मिलेंगी तो तब तक इसका क्योर नहीं ढूंढा जा सकता. विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अपना जो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ है वो बढ़ा दिया, और हमने सोचा कि क्योर में और रिसर्च में तो कई दफ़ा सारी उम्र लग जाती है, इसलिए हम ऐसे लोगों के लिए भी काम शुरू करें जो उनको फौरी तौर पे बेनिफिट कर सके. तो दूसरा प्रोग्राम जो डॉक्टर सलमा ने शुरू किया वो दरख्शां के नाम से है, और उसमें हम पिंडी में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारा, जिसमें चारों डिसेबिलिटीज़ की ख़वातीन को, खा उन्हें कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी हो या विजुअल इम्पेयरमेंट हो या माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन हो या स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड हो. तो और प्लीज़ सब लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यही टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको ऐसी डिसेबिलिटीज़ के लिए यूज़ करना है. तो उनको रिहैबिलिटेशन के स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाती है, डेली लिविंग स्किल्स में और इनकम जनरेटिंग स्किल्स में. तो वो हमारा एक बहुत अच्छा रिसोर्स सेंटर है. और फिर तीसरा प्रोग्राम हमारा ऑडियो वर्ल्ड का है. तो इसको 94 में मैंने शुरू किया था, और उसकी वजह कमी तो मेरा ख्याल उस वक्त करियर ही की थी, और यही है कि मैं CSS चूँकि नहीं कर सकती थी, और मेरे पास उस वक्त कोई मुझे अपॉर्चुनिटी ऐसी समझ नहीं आ रही थी. तो जिस दिन मेरी डिग्री ख़त्म हुई उसके अगले दिन ही सलमा आपा ने मुझसे ये कहा कि ज़हीर साहब मुझे बहुत अरसे से कहा करते थे कि मैं इस फाउंडेशन में आके कुछ काम करूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था स्टडीज़ के साथ. तो फिर सलमा आपा ने ये कहा कि एक सेमिनार हो रहा है पूरे पाकिस्तान के जो डिसेबल लोग हैं वो उनके लिए हो रहा है, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए 3 दिन का, और उसमें आप कंपेयरिंग करें. तो उस वक्त तो ना उर्दू आती थी और ना कॉन्फिडेंस था, और बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट हुई, लेकिन चूँकि मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को तो मैंने एग्री तो कर लिया, और बड़ी मुश्किलों से मैंने वो कंपेयरिंग की, बहुत रट्टे लगा के. तो लेकिन ये है कि उसके बाद वहाँ पे जितनी भी NGOs पार्टिसिपेट कर रही थी उन सब ने ऑफ़र किया कि मैं उनको ज्वाइन करूँ, और सलमा आपा ने भी ऑफ़र किया. तो मैंने सोचा कि मुझे इंट्रोड्यूस उन्होंने नहीं कराया, इसलिए मुझे उन्हीं को ज्वाइन करना चाहिए. और वैसे भी मैं उन्हें बहुत अरसे से जानती थी, एंड आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट ऑफ कोर्स टिल दिस डे. तो फिर जब PFFP ज्वाइन की तो ज़हीर साहब मुझसे एक दिन कहने लगे कि आप अपने फारिग वक्त में क्या करती हैं. तो मैंने कहा कि मैं पढ़ती रहती हूँ. तो उन्होंने कहा कि पढ़ती कैसे हैं. तो मैंने कहा और क्या पढ़ती हैं. तो मैंने कहा कि सब कुछ पढ़ लेती हूँ, नॉवेल्स भी और न्यूज़ मैगजीन्स एंड नेशनल जियोग्राफिक एंड रीडर्स डाइजेस्ट एंड टाइम्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ मैगजीन्स. तो कहने लगे ये आप कैसे पढ़ती हैं, कौन पढ़ के सुनाता है. तो मैंने कहा जी ये सब तो कैसेट्स पे मुझे आते हैं फ्रॉम टॉकिंग न्यूज़पेपर्स यूनाइटेड किंगडम से. तो कहते हैं कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ पे क्यों ना शुरू करें फॉर ब्लाइंड पीपल. तो तब मैंने सोचा कि हमें पहले टेक्स्ट बुक्स का शुरू करना चाहिए, एंड देन वी शुड मे बी मूव ऑन टू प्लेजर लिसनिंग. और उस वक्त एक स्टूडेंट था जो कि BBA कर रहा था, एंड ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम RP. तो वो कहने लगे कि आपके पास बहुत से फ्रेंड्स हैं जो आपकी रिकॉर्डिंग में हेल्प करते हैं, आप कुछ रिकॉर्डिंग मुझे करवा दें. तो फिर हमने इनिशियली तो उनके लिए रिकॉर्डिंग शुरू की, और फिर ये सिलसिला बढ़ता चला गया. और प्लेजर लिसनिंग का जो आगाज़ है वो तो अमार से मिलने के बाद हुआ इन आवर लाइब्रेरी, बिकॉज आप लोग देख ही रहे होंगे मुझे बोलने का काफ़ी शौक है. तो वो अमार यूज्ड टू मेंशन दिस बुक बाय बानो कुद्सिया राजागिर्द, एक बहुत अच्छा और बड़ा तवील नावल है. तो वो जब भी उसका जिक्र करते थे, शायद ये मुझे चुप कराने के लिए करते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दैट आप कोई बात ही नहीं करते. तो मैंने कहा कि मैंने वो पढ़ा हुआ नहीं है. तो तब उन्होंने ये पूरी किताब मुझे बर्थडे पे रिकॉर्ड करके दी ऑन 15 कैसेट्स अनअब्रिज्ड. तो वो उससे हमें ख्याल आया कि हमें दैट वाज आल्सो द फर्स्ट बुक ऑफ आवर